Okay, so starting with example 16-1, we have a cord which is being wrapped around a wheel which is initially at rest as shown to you. So आपके पास एक wheel है जिसको आपने उसके center से ground कर दिए. So the motion which is possible in this wheel is that of pure rotation about its center point O. So you have wrapped a cord around this wheel. Initially the wheel is at rest. You applied some force on the cord which gives an acceleration of 40 meters per second square as shown to you in this figure. You need to determine as a function of time the angular velocity of the wheel. So you need to determine omega as a function of time. And in the second part, you need to determine the angular position of this line OP. So second part में आपको एक तरह से कहा जा रहा है कि आपने theta as a function of time के तौर पे find करना. So you need to determine omega and theta as a function of time. The wheel is initially at rest. By applying some force on this cord, it gives an acceleration of 40 meters per second square to this cord. Okay, first of all, is it total acceleration or any component of acceleration? It is the component of acceleration. So which component is this one? It is the tangential component of acceleration. So basically the tangential component of acceleration is given to you as AT equal to 40 meter per second square. So how you are going to determine omega? Tangential component किसके बराबर होता है? Scalar form में अगर हम देखें तो अल्फा r के बराबर होता है, isn't it? So इसके हिसाब से अगर देखें अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फा would be equal to 4 over r into t. What is r here? 0.2. So alpha would comes out to be 20t radians per second square. So once you have found this alpha, how you are going to find omega? Alpha क्या होता है? Alpha is d omega by dt. It means कि आपके पास d omega जो है, it is going to be 20t dt, and then you are going to integrate both sides of this equation from 0 to omega because the wheel was at rest, from 0 to t. So once you integrate it, omega would comes out to be 20t square over 2, or it would be equal to 10t square radians per second. Is this clear to all of you? Yes, sir. ठीक है. So omega as a function of time आपने determine कर लिया. Omega is 10t square radians per second. For example, आपसे कहा जा रहा होता कि t equal to 1 पे omega की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ t की 1 वैल्यू पुट कर लेते, आपको omega की relevant radians per second मिल जाती. Okay, what about part B? How you are going to find theta as a function of time? Theta equal to derivative of omega. So since omega is basically d theta over dt, it means कि आपके पास d theta आ जाएगा 10t square dt, and then you integrate it from 0 till theta, from 0 till t, you will get theta to be equal to 10t cube over 3. So you can write it 3.33 t cube radians. Is it clear to all of you? ठीक है, तो इस तरह आपने थीटा फाइंड कर लिया. यही अगर मैं आपको थीटा दे देता, you differentiate it once, you are going to get omega, you differentiate it once more, again you are going to get alpha. तो बिल्कुल ये उसी तरह है जिस तरह आपको s as a function of time given होता, आप एक दफा डिफरेंशिएट करते आपको v as a function of time मिल जाता, एक और दफा डिफरेंशिएट करते आपको a as a function of time मिल जाता. ऑल्टरनेटली अगर आपको a as a function of time दिया जाता, आप एक दफा इंटीग्रेट करते, v as a function of time मिल जाता, एक और दफा इंटीग्रेट करते तो आपको s as a function of time मिल जाता. Is it clear to all of you? So we are going to stop here क्योंकि 12:12 हो गए. So probably the next problem is not going to be solved in the remaining time. So we are going to stop here. इंशाल्लाह 16-2 से onward हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. जहाँ तक ताल्लुक क्विज का कल का तो वो मैंने पहले भी रिपीट किया था, आपके सीआर को भी मेरे ख्याल में मैंने वीकेंड में बताया था. द क्विज इज गोइंग टू बी हेल्ड टुमारो इन टुमारोज क्लास, and the topics are going to be the first 2 topics of chapter number 15, which is principle of linear impulse and momentum and conservation of linear momentum. इसमें impact शामिल नहीं है, जिसमें से आपने probably assignment भी सबमिट कराई है, वो शामिल नहीं है. आपके पहले 2 टॉपिक्स जो है
चैप्टर नंबर 15 के, उसमें से कल क्विज होगा। इज इट क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ यू? जी सर। और कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आपकी जो पूछना चाहते हो आज के लेक्चर के हवाले से या क्विज के हवाले से? एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये अल्फा और नॉर्मल एक्सेलरेशन में क्या फर्क है? देखें, अल्फा और नॉर्मल एक्सेलरेशन, अल्फा इज बेसिकली द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस रिजिड बॉडी। ये पूरी रिजिड बॉडी जो है इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। जो आप an की बात करते हैं वो लीनियर एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होता है इन द उसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फुट पर सेकंड स्क्वायर होंगे। सो एक एंगुलर एक्सेलरेशन है, एक लीनियर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है। मसलन अगर मैं इस फिगर पे जाऊं, इस फिगर को थोड़ा गौर से देखें, ये 2D में आपको नीचे फिगर नजर आ रही है। जी सर। तो आपके पास ओमेगा और अल्फा जो है वो इस डायरेक्शन में होगा क्लॉकवाइज। अगर ओमेगा क्लॉकवाइज है और एंगुलरली एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, तो अल्फा भी क्लॉकवाइज ही होगा, वरना काउंटर क्लॉकवाइज होगा। और आपका ए जो है वो इस प्लेन में लाई करेगा an और at की फॉर्म में। सो एक एंगुलर एक्सेलरेशन है, एक लीनियर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है। सर इस मैथमेटिकली तो इस तरह डिफरेंस समझ आता है, लेकिन जो कंसेप्चुअली होता है कि मतलब रोटेट कौन करता है और मूवमेंट कौन करता है सर। अच्छा चलें, मेरा आपसे अगला सवाल, आपके सवाल की क्लैरिफिकेशन, ओमेगा और वी में क्या फर्क है? सर यही तो पता नहीं है ना सर। वो ओमेगा सर वो इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल कंपोनेंट्स। देखिए, आपके पास एक एंगुलर वेलोसिटी और एक लीनियर वेलोसिटी, यानी दो डिफरेंट चीजें हैं ना, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। आपका ओमेगा जो होता है वो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी है कि ये रिजिड बॉडी कितने रेडियंस पर सेकंड के साथ रोटेट कर रही है। और उसमें से अगर कोई एक पॉइंट में पिक कर लूं उस रिजिड बॉडी का, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट पी है, इसकी लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहूं तो दिस लीनियर वेलोसिटी v इज गोइंग टू बी टेंजेंट टू दैट कर्व एट दैट पॉइंट, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ओमेगा r के बराबर होगा। तो एक एंगुलर वेलोसिटी और एक लीनियर वेलोसिटी है। इसी तरह अल्फा और at an है। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, at and an आर बेसिकली द कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन।